بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے 11 واجب اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 تکبیرۃ الاحرام یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا، نمبر 3 قیام یعنی سیدھے کھڑا ہونا، نمبر 4 رکوع یعنی جھکنا، نمبر 5 سجدہ یعنی 2 سجدے، نمبر 6 قرات یعنی قرآن کی تلاوت، نمبر 7 ذکر یعنی رکوع اور سجود کا ذکر، نمبر 8 تشہد یعنی شہادت دینا، نمبر 9 سلام یعنی سلام پھیرنا، نمبر 10 ترتیب یعنی صحیح ترتیب، نمبر 11 موالات یعنی یکے بعد دیگرے بغیر کسی تاخیر کے۔ ان 11 واجب اعمال کو واجبات رکنی و واجبات غیر رکنی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے 5 کو واجبات رکنی کہتے ہیں: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور 2 سجدے۔ اگر آپ نماز کے ان 5 بنیادی واجبات میں سے کسی ایک کو بھی جان بوجھ کر یا غلطی سے چھوڑ دیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر غلطی سے آپ رکوع کرنا بھول گئے اور نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا، آپ کی نماز باطل ہے اور دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایک اضافی رکن شامل کریں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک بھی جان بوجھ کر بڑھا دیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے جان بوجھ کر ایک اضافی رکوع کا اضافہ کیا تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ غلطی سے ایک اضافی رکن بڑھا دیں تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ اگر وہ رکن رکوع یا 2 سجدے ہوں تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن باقی 3 ارکان غلطی سے بڑھانے کے باوجود بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ مثلا آپ نے غلطی سے ایک اضافی تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا تو آپ کی نماز اب بھی درست ہے۔ نماز کے باقی 6 واجبات کو واجبات غیر رکنی کہتے ہیں، جو نماز کے غیر بنیادی حصے ہیں۔ وہ ہیں قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب اور موالات۔ اگر آپ نے غیر رکن میں سے کوئی حصہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے جان بوجھ کر تشہد چھوڑ دیا تو یقیناً آپ کی نماز باطل ہو گئی، لیکن اگر آپ غلطی سے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور آپ نے اپنی نماز ختم کر دی، آپ کی نماز ابھی بھی صحیح ہے۔ آئیے نماز کے اجزاء کے بارے میں کچھ اور مزید بات کرتے ہیں۔ نیت کا مطلب ہے ارادہ۔ نماز کی نیت خلوص کے ساتھ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ نیت کو کسی اور مقصد کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت اور دکھاوے کی نیت ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کا تعین بھی ضروری ہے کہ آپ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء پڑھ رہے ہیں۔ آپ پر لازم ہے کہ نماز کے شروع سے آخر تک ایک نیت رکھیں۔ لہٰذا اگر نماز کے دوران آپ اس حد تک غافل ہو جائیں کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور آپ نہیں جانتے کہ کیا جواب دینا ہے تو آپ کی نماز باطل ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نیت کا زبانی ہونا ضروری نہیں، اگر آپ چاہیں تو دل ہی دل میں نیت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیت نماز کا رکن ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے اسے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام 2 لفظوں سے بنتا ہے، تکبیر اور احرام۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تسبیح کرنا۔ احرام سے مراد وہ عمل ہے جو بعض چیزوں کو نمازی کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر جس سے نماز شروع ہوتی ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ اسے کہتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے بولنا، چلنا، کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تکبیرۃ الاحرام کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1
हर नमाज के शुरू में इसकी सही तलफ़ुज़ में अदायगी अल्लाहु अकबर। नंबर 2, इसे अरबी में कहना ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मसलन खुदा सबसे बड़ा है, या उसे दूसरी ज़बान में नहीं कह सकते, अरबी में कहना ज़रूरी है। नंबर 3, खड़े होकर कहना ज़रूरी है जब तक कि आप इस काबिल हों और जिस्म साकिन हो। चलते फिरते अल्लाह अकबर कहने से नमाज बातिल हो जाती है। नंबर 4, 2 अल्फाज अल्लाह और अकबर यके बाद दीगरे कहे जाएं, यानी दोनों अल्फाज के दरमियान तवील वक्फा ना हो। तकबीरतुल एहराम कहते वक्त हाथ कानों के मुतवाज़ी उठाना भी मुस्तहब है। याद रखें, तकबीरतुल एहराम नमाज का रुकन है। अगर आपने जानबूझकर या गलती से इसे छोड़ दिया तो आपकी नमाज बातिल है। क़याम, क़याम का मतलब है खड़ा होना। कुछ क़याम रुकन है और कुछ गैर रुकन। तकबीरतुल एहराम के लिए क़िबले की तरफ मुंह करते हुए और रुकू में जाने से पहले साकिन खड़ा रहना और जिस्म को हरकत न देना वाजिब और रुकन है। ये कुछ मिसालें हैं जहां आप रुकू से पहले क़याम छोड़ सकते हैं। अगर आप जमात की नमाज में देर से शरीक हो रहे हैं और इमाम रुकू में है तो आप साकिन रहते हुए तकबीरतुल एहराम कहें। फिर आपको भी साकिन रहना होगा और आपको थोड़ा सा रुकना यानी तवक्कुफ करना होगा। इसे रुकू से पहले क़याम कहते हैं। फिर आप रुकू में जाएं और इमाम से मुल्हक हो जाएं। इसके अलावा फ़र्ज़ करें कि आप रुकू करना भूल गए और आप सूरतें पढ़ने के बाद सीधे बैठ गए, लेकिन आपने अभी तक 2 सजदे नहीं किए हैं और आपको याद है कि आपने रुकू नहीं किया है। आपको पहले सीधा खड़ा होना होगा क़याम के लिए, जो कि रुकू से मुत्तसिल हो जाए, और फिर रुकू करना होगा। लेकिन अगर दूसरे सजदे में याद आए कि रुकू नहीं किया तो नमाज बातिल है। पहली 2 रकतों में कुरान मजीद की सूरतें पढ़ते वक्त और तीसरी और चौथी रकत में तस्बीहात पढ़ते वक्त खड़े होना भी वाजिब है, ताहम यह क़याम गैर रुकन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सूरतें या तस्बीहात पढ़ते हुए गलती से बैठ जाएं तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन अगर आप जानबूझकर बैठ गए तो आपकी नमाज बातिल है। रुकू करना भी वाजिब है और नमाज के वाजिब अरकान में से एक रुकन है। अगर भूले से या जानबूझकर रुकू छोड़ दिया तो नमाज बातिल है। मर्द के लिए इस तरह झुकना मुस्तहब है कि वो अपने घुटनों को पीछे धकेले और अपनी उंगलियां घुटनों पर रखे। ख़वातीन के लिए ये ताकीद की जाती है कि वो अपने हाथ घुटनों के ऊपर रखें और घुटनों को पीछे ना धकेलें। सजदा, नमाज की हर रकत में दोनों सजदे वाजिब हैं। दोनों सजदों को मिलाकर नमाज का रुकन शुमार किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक रकत में दोनों सजदे छोड़ दिए या एक रकत में मज़ीद 2 सजदे इजाफा कर लिए, ख्वाह जानबूझकर या गलती से, तो आपकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर आपने पहली रकत में गलती से एक सजदे का इजाफा कर दिया या छोड़ दिया या मुख्तलिफ रकतों में चंद सजदे छूट जाएं, तो भी आपकी नमाज सही है। अलबत्ता आपको नमाज के बाद छोड़े हुए सजदों को दोबारा करना चाहिए। सजदे के दौरान जिस्म के 7 आज़ा ज़मीन को छूने चाहिए। पेशानी, हाथों की दोनों हथेलियां, पाँव के दोनों घुटने और दोनों पाँव के 2 अंगूठे। ज़मीन पर सजदा करना ज़रूरी है, या वो चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं जैसे लकड़ी, घास या दरख्त के पत्ते जो खाने के काबिल नहीं हैं या पहनने के काबिल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि खाने की या पहनी हुई अशिया जैसे गंदम या कपास वगैरह पर सजदा करना जायज़ नहीं। क़राअत का मतलब है पढ़ना या तिलावत करना। क़राअत वाजिब है लेकिन गैर रुकन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसे गलती से छोड़ दिया तो फिर भी आपकी नमाज सही है, लेकिन अगर आपने इसे जानबूझकर छोड़ दिया तो आपकी नमाज बातिल है। 5 नमाजों की पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा और इसके बाद दूसरी मुकम्मल सूरा पढ़ना वाजिब है। एहतियात वाजिब के तौर पर अगर आप सूरह फातिहा के बाद
सूरह ज़ुहा पढ़ते हैं तो आपको सूरह शरह भी पढ़नी होगी, या अगर आप सूरह फील पढ़ते हैं तो आपको सूरह कुरैश भी पढ़नी होगी। इन दोनों को मिलाकर नमाज में एक सूरा समझा जाता है। नीज इन 4 सूरतों में से कोई भी सूरा ना पढ़े जिनमें सजदा वाजिब है। मर्द हजरात फजर, मगरिब और इशा की नमाजों में सूरतें बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, जबकि औरतें फजर, मगरिब और इशा में सूरतें बुलंद आवाज से पढ़ सकती हैं, बशर्त ये कि कोई नामहरम इनकी आवाज़ ना सुने, वरना उन्हें आहिस्ता तिलावत करनी चाहिए। जहाँ तक नमाज ज़ोहर और असर का ताल्लुक है तो मर्द और औरतें आहिस्ता आवाज़ में इन सूरा की तिलावत करें। तीसरी और चौथी रकत में मर्द व ख़वातीन एक बार सूरह फातिहा या 4 तस्बीहात आहिस्ता पढ़ें। रुकू और सुजूद का जिक्र। रुकू के जिक्र में 3 बार सुबहान अल्लाह या 1 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे कहना अफजल है, और सजदे के जिक्र में 3 बार सुबहान अल्लाह या सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे 1 बार कहना अफजल है। इन्हें सही अरबी में कहना चाहिए और एक साथ पढ़ना चाहिए। तशहुद। तशहुद का मतलब शहादत देना या गवाही देना है। तशहुद वाजिब है लेकिन गैर रुकन है। दूसरे सजदे से उठकर दूसरी रकत में 1 मरतबा तशहुद पढ़ना वाजिब है और 3 और 4 रकत वाली नमाज में 2 मरतबा पढ़ना वाजिब है। इसे बैठते हुए, साकिन रहते हुए सही अरबी में पढ़ना चाहिए और एक साथ पढ़ना चाहिए। पहले अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु कहना चाहिए, फिर व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कहे। अगर आपने गलती से तशहुद छोड़ दिया और अगले रुकू में चले गए तो आपकी नमाज सही है, लेकिन इसकी क़ज़ा और सजदे सहू नमाज के बाद अदा करें। सलाम। सलाम भी एक गैर रुकन वाजिब है। आखिरी रकत में तशहुद के बाद कहा जाता है। इसे अरबी में कहना चाहिए, पढ़ते वक्त बैठना चाहिए और जिस्म साकिन होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम कहना वाजिब है और वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू का इजाफा करना अफजल है। या आप ये कह सकते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरतीब। तरतीब का मतलब है सही तरतीब, यानी अगर आपने जानबूझकर नमाज के किसी हिस्से की तरतीब बदल दी तो आपकी नमाज बातिल है। अगर गलती से नमाज की तरतीब बदल दी, ऐसे कि वो वाजिब रुकन था, तो आपकी नमाज बातिल है। मिसाल के तौर पर आप रुकू करना भूल गए, जो एक रुकन है, और आप पहले ही अगले रुकन में जा चुके हैं और 2 सजदे कर चुके हैं, तो आपकी नमाज बातिल है। लेकिन अगर आप एक रुकन भूल गए और गैर रुकन होने के बाद, मसलन आप 2 सजदों को भूल गए जो एक रुकन है और तशहुद शुरू कर दिया जो कि गैर रुकन है, तो आपको वापस जाकर रुकू पढ़ना चाहिए और नमाज को दोबारा जारी रखना चाहिए। अलबत्ता अगर आपने गलती से किसी गैर रुकन के हिस्से की तरतीब बदल दी और आप अगले रुकन में चले गए तो फिर भी आपकी नमाज सही रहेगी। मुवालात। नमाज के तमाम आमाल यके बाद दीगरे होने चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी नमाज को रोके और इतनी देर खड़ा रहे कि दूसरे लोग ये समझें कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो इसकी नमाज बातिल है।